Hello everyone, hope you all are fine. So, today I decided to give you a lecture on tenses uh, as it is a part of grammar and a lot you have done already from your short stories. So, I decided to go with it. Let's start. Let me to share. This is a kind of basic thing. Sometimes students consider it like it's very lame to learn tenses at this stage of life where you think like you are studying uh, at a undergraduate level, but you know what, why it is important. It is important sometimes even in schools or in colleges we are not focused towards tenses and we don't know how to draw the structure of a sentence. And due to the minor mistakes, even which we consider minors, but basically these are not minor when it comes about writing or speaking. So tenses are the only thing through which you can remove those errors related to a sentence when and where you have to use that sentence. So that's why I decided to go for it. Wherever you will find a difficulty, raise your hand, and you need to really keep focus on this. Along with it, please note down few tips that I'm going to share with you for it. Okay. So first we need to know what basically tense is, because we all the time, even in schools we know that there is a word that is tense, but we don't know that what actually it means, from where the word derived, and how, what mean it is giving us. So this is a word that was derived from a Latin word first, that then it was converted into English. That Latin word was tempus, and tempus means basically time. So this verb indicates that tenses always are related to time, and they tells us information regarding time. Now, time for what? We need to know that. For what we need to know that time. So time of the action or any event, any situation that happened. And so we need to know at what time that action happened, or is it happening, or um, it happens every day, or it will happen, it happened somewhere in the past. So all these things, the information related to that action, uh, which is related to the time, is only given to us with this one concept, that is tenses. So for this reason, tenses are divided into three eras, that is present, past, and future. So present tense expresses an unchanging, repeated, or reoccurring action or situation that exists only now for current time period. What action is happening, happened, or it happens, so every day. So that is told by the present tense. So if you go for the past tense, you know that whatever the action that happened somewhere in the past and it finished at that moment, or it just started and then finished in the past, so it was always discussed with the past tense. And future always indicates what is coming next to us, what will happen next. So um, this is about future tense. Now along with it, we need to derive those action, that what is the state of that action, is it completed? When it comes about present, past, and future, that is the eras for the tense. When it comes about indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous, it is uh,
always for the state of the action. That is that what is the situation right now of the action. Action is completed, action is happening, it is under the process, or it is everyday task, or it started at some point and then finished. So this is what is told by indefinite continuous perfect tense, or perfect continuous, or progressive. Continuous ko nowadays we call as in progressive tense as well. Why progressive? Because one at one moment it just started, it is in the progress, and then it will be finished if it is perfect continuous or perfect progressive tense. But if it is just progressive, so that is an unfinished action, and it is in the progress, like it is happening still. So when we multiply these three eras with the with those four states of or conditions of tenses, so there we get basically 12 tenses. So present, past, and future, you can see on your screens. When we when it comes about present, so present आवाज बहुत indefinite. स्लो आ रही है. When it comes about present, so present indefinite, then present continuous, then present perfect, and then present perfect continuous. Similarly for past, you see that all these four states for past as well. And for future, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So you see here we get 12 tenses. Is it clear till now? मैम एक बार फिर Yes, दोहरा ma'am. वो कर दे रिवीजन. What? एक बार फिर बता दें. अच्छा, एक बार फिर मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ. आई गॉट इट. ओके मैं मैम, आपको थैंक उर्दू यू. में बता देती हूँ आज. ताकि मैंने आपको बेसिक. पहले ये बताया कि टेंसेस जो हैं वो पहले बेसिकली टेंस वर्ड का मतलब क्या था, कहाँ से ये निकला. तो ये एक लैटिन वर्ड था टेम्पस, जिसका मीनिंग था टाइम. सो इसने हमें जब इसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया गया तो उस कन्वर्जन से हमें पता चला कि बेसिकली टेंसेस का मतलब ये है कि टाइम के बारे में हमें बताते हैं. अब टाइम किस चीज़ के टाइम के बारे में, कोई भी काम जो आप करते हैं, कोई एक्शन जो आप करते हैं, उसके टाइम के बारे में बताते हैं. सो टेंसेस बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देंगे किसी एक्शन की. वो एक्शन किस टाइम पीरियड में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में होगा. ये अब तीन हमारे पास टाइम पीरियड आ गए. जब इन टाइम पीरियड की बेसिस पे आपने अपने टेंस को वो एक्शन जो है उसकी स्टेट बतानी है कि वो जो एक्शन है वो भी ख़त्म हुआ है या अभी वो एवरीडे होता है वो एक्शन या वो काम, मतलब जिसको आप कहते हैं, या वो प्रोग्रेस में है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड टास्क है, या वो एक मोमेंट पे स्टार्ट हुआ था और फिर ख़त्म हुआ. अगर तो वो एवरीडे टास्क है और वो रोज़ काम आप करते हैं तो वो इंडेफिनिट टेंस में आएगा. अगर कोई ऐसा टास्क जिसको आप कह लें कि वो अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन हो रहा है, सो दैट विल बी इन द प्रोग्रेसिव टेंस और कंटिन्यूअस टेंस. अगर एक काम खत्म हो गया है, उसकी सिचुएशन ये है कि आपने कभी स्टार्ट किया था लेकिन वो खत्म हो चुका है, यू हैव डन दैट एक्शन, तो वो परफेक्ट में आ जाएगा. अगर आपका कोई काम जो है वो यू स्टार्टेड इट एट वन मोमेंट एंड देन यू फिनिश्ड इट, तो वो आपका आएगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो हमारे पास तीन टाइम पीरियड हैं टेंस में, और चार सिचुएशंस हैं एक काम के करने की. यहाँ तक समझ आई? इज इट क्लियर? यस मैम. यस ठीक है. मैम. अब जब हम इन तीन टाइम पीरियड को इन चार स्टेट ऑफ एक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 टेंसेज आएंगे. 12 टेंस ही होते हैं ना. नाउ इट इज कंसिडर्ड दैट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नॉट एग्जिस्ट. जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो काम हम फ्यूचर में शुरू करेंगे वो खत्म कर पाएंगे या नहीं. सो दैट्स व्हाई दैट इज रिमूव्ड नाउ फ्रॉम ग्रामर. तो बेसिकली अब 11 टेंसेस होते हैं, बट इफ वी कंसिडर इट जनरली तो हमारे पास 12 टेंसेस. तो आप देखिए, अब तीन को जब हमने चार से डिवाइड किया तो वी गॉट 12 टेंसेस. समझ आ गई?
Yes, ma'am. देयर आर some रूल्स फॉर these टेंसेस. अब इन टेंसेस के लिए कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स बेसिकली डिफाइन करते हैं कि आपका जो टेंस है उसमें आपने दो चीजें, on the basis of two things your tenses are differentiated from one another. एक दूसरे से वो किस बेस पे मुख्तलिफ होते हैं, वो दो चीजें. एक आपकी हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म होती है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा आपका मेन वर्ब की फॉर्म होती है. समझ आई? आपके वर्ब्स में दो चीजें देखी जाएंगी. एक आपका मेन वर्ब, उसकी कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं आप किसी भी टेंस के लिए, और दूसरा यूज करते हैं आप हेल्पिंग वर्ब. तो ये दो कीज हैं आपके टेंसेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए कि उनमें कहाँ सिमिलैरिटी है या कहाँ डिफरेंस है. इन दो की बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं. उसी के बेसिस पे हम कुछ रूल्स बनाते हैं टेंसेस के लिए. ठीक है, इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन अ चार्ट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. ऑन द वेरी लेफ्ट साइड इट इज गिवन ऑल थ्री eras. वो जो तीन एरा में हमने डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. and if you just see on the top of it, four states are given. जो हमने फोर स्टेट्स, मतलब सिंपल फॉर्म मतलब इंडेफिनिट टेंस में, प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट का आपको पता है परफेक्ट टेंस में जो हम करते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूअस. फोर्थ वन इज दैट. ठीक है. अब हमने जब एक टेंस बनाना होता है तो हम इस, ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसको सिंपल या इंडेफिनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ऐसे ही है ना? सो ये जो फर्स्ट टेबल आएगा आपके पास, वेट अ मिनट, लेट मी टू टेक समथिंग फ्रॉम हियर. ये जो आपके पास फर्स्ट टेंस है, दिस वन सिंपल, इसको आप इंडेफिनिट कहते हैं ना. सो ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसको जब आप इस टेंस के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इज इट क्लियर? अब Yes, ये ma'am. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस Yes, Yes, है, ma'am. ma'am. इसकी की क्या है? इसकी दो कीज थी मैंने आपको बताया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब. अब यहाँ पे इन्होंने मेन वर्ब की फॉर्म तो बता दी कि वो फर्स्ट फॉर्म होती है, और उस फर्स्ट फॉर्म में जहाँ सिंगुलर्स आएंगे, सिंगुलर्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड नेम. ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं, इनकी जब भी ये किसी टेंस में यूज होंगे, हम इसकी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और उनके उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे अकॉर्डिंगली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि आई, शी राइट्स, मतलब वो लिखती है, तो शी इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका. इसके साथ अब जो मेन वर्ब है वो है आपका राइट. राइट के साथ आपने क्या लगाया? शी राइट्स. ई ऑलरेडी राइट के एंड पे होता है, सो हमने सिर्फ एस लगाना होता है. सो दैट इज शी राइट्स. ठीक है. मेन वर्ब की फॉर्म हो गई. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास मेन वर्ब तो है इसमें इंडेफिनिट में, लेकिन हमारे पास कोई भी इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. लेकिन जो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आएगा, आप उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So what you do basically, for simple sentences you don't use any helping verb, but you just add s or es with the main verbs if your subject is singular, except I के अलावा. जब I की बात आती है, आप प्लूरल्स में आते हैं, तो फिर वहां पे आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर वहां ये एस और ई एस भी यूज नहीं होगा मेन वर्ब के साथ. So what we will say, they go, not goes. अब जब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, what it will become?
दे डू नॉट गो। अब डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, लेकिन उसका रूल ये है कि ये हम सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में यूज नहीं करते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है बिल्कुल इसके सिमिलर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिमिलैरिटीज हैं। कैसे सिमिलैरिटीज हैं? दोनों के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, सिर्फ हम जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। व्हाट वी डू, वी जस्ट चेंज मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट में तो ये था ना, आपने एस या एस लगा दिया अगर सिंगुलर्स हैं तो, लेकिन पास्ट में चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, जो भी फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होगा आपने उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ही लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ कहा था दे गो, तो हम यहाँ कहेंगे दे वेंट। पास्ट इंडेफिनिट में हम सिंपल सेंटेंस में हम कहेंगे दे वेंट, सेकंड फॉर्म गो की वेंट ही होती है। अब आप देखें इसमें मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही हम पास्ट के सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल यूज देयर हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। वेट, एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए है वो है डू या डस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिमिलरली if you have any helping verb for your past tense, so hv for this is only did। इसके लिए सिर्फ did helping verb यूज होगा। is it clear now? Yes, ma'am. Yes, सिंपल ma'am. That's clear. सेंटेंसेस जब भी आएंगे प्रेजेंट या पास्ट के, आपने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, वहां आप मेन वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, तो यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये इस टेंस में सिमिलैरिटी है। देयर आर टेंसेस जिनमें सिमिलैरिटीज हैं। अब जब आप इस चीज को एक एक लाइन अप कर लेना, दैट व्हाट सेंटेंसेस शेयर सिमिलर थिंग्स विद ईच अदर, तो आप आपके लिए थोड़ा सा वो जो एक ईज होती है ना वो हो जाती है कि हाँ हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बट वन थिंग इज दैट अबाउट टेंसेस, इट इज जस्ट लाइक द फॉर्मूला बेस्ड। Until you are using the formulas of this in the form of keys, आप इसको कर सकते हैं बट थ्रू प्रैक्टिस। इफ यू थिंक लाइक आपको ये टेबल या चार्ट दिया जाए और आपको कहा जाए कि इनको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, सो यू विल forget the very next day. So for best thing for tenses is that you need to do it, you need to practice on it। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी comfortable while making any sentence or while using these main verbs or helping verbs accordingly। ठीक है, so here is this third era, that is future। so future indefinite के जो हम simple sentence बनाएंगे, so future जो indefinite tense है, it is different from the other tenses। अब प्रेजेंट और पास्ट तो शेयर करते हैं ना एक दूसरे की क्वालिटीज के, दोनों के जो सिंपल सेंटेंस है दोनों में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएंगे, और फॉर्म ऑफ वर्ब्स मेन वर्ब्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये लोग अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्यूचर में इफ यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, तो तब भी आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो
Future indefinite tense is different from present and past indefinite tense. So future में हमारे पास जो आता है helping verbs, that is will and shall. According to the rules of British grammar, will and shall are used accordingly. Like I और we के साथ हम shall use करते हैं. I और we जो subject होते हैं हमारे singular noun, जो हमारे nouns हैं उनके साथ, not singular, sorry. लेकिन बाकी जितने भी हमारे पास नाउन्स हैं उनके साथ हम विल यूज करेंगे. ही, शी, इट, मे, सॉरी, नेम, दे, यू, उन सब के साथ आप विल यूज करेंगे. एक्सेप्ट आई एंड वी, आई और वी के साथ हम शल यूज करते हैं. बट नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ न्यू ग्रामर एंड अमेरिकन ग्रामर, we don't need to differentiate between will and shall. We can remove shall and we can use only will with everything. लेकिन officially and for academic purposes still we need to follow the same rule of the British grammar according to will and shall. ठीक है. So first form of main verb, for example हमने जो past tense बनाया they went, now we will make it they will go. So first form go, main verb की will is introduced into it. Then if you see progressive forms, progressive जहां भी आएगा, wherever you will find present progressive है, past progressive है, future progressive है, जब भी progressive की बात होगी आपने first form main verb की लेनी है और उसके साथ ing लगा देना है. वो चाहे आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव है या सिंपल प्रोग्रेसिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आएगा. ये रूल है इसका प्रोग्रेसिव का, क्योंकि वो काम जो है वो प्रोग्रेस में है और आईएनजी ही इंडिकेट करता है कि ये काम जो है अभी हो रहा है. सो दैट्स व्हाई जहां भी आप देखें कि ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है या प्रोग्रेसिव टेंस है, तो आप वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें. जैसे हमने गो किया था तो वो इट इज गोइंग टू बी एज गोइंग. सो राइट था तो राइटिंग आ जाएगा. अब प्रोग्रेसिव टेंसेस में जो चेंज होता है वो मेन वर्ब की फॉर्म की बेसिस पे होता है. मेन वर्ब सॉरी 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 मेन वर्ब तो सेम होता है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है. सो हेल्पिंग वर्ब फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है एम. फॉर एम हम यूज करते हैं आई के लिए. इज हम यूज करते हैं फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ सिंगुलर्स ही, शी, इट और नेम के साथ. और आर हम यूज करते हैं दे, वी, यू के साथ. ठीक है. when it is about past progressive tense, तो past का जो helping verb है past progressive के लिए या past continuous के लिए वो was and were है. was for all singulars except no not except, for all singulars including I. और were जो है वो सारे ही plurals के लिए होगा, जैसे they, we and you. और आप देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, सब में सेम आएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी इन सब में क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टेंस है. फ्यूचर प्रोग्रेसिव आप देखें, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव विल बी. अब इसमें ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि सिंगुलर्स और प्लूरल्स के साथ क्या आएगा. इसमें चाहे कोई सिंगुलर है चाहे कोई प्लूरल नाउन है, आपने सबके साथ विल बी ही लगाना है. आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, वी विल बी. लेकिन मेन वर्ब जो है दैट इज गोइंग टू बी चेंज. अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे हमने बाकी प्रोग्रेसिव टेंसेस में किया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट इज आवर परफेक्ट फॉर्म. अब परफेक्ट की जब हमने पहले बात की थी तो वी टॉक्ड अबाउट इट कि जब भी परफेक्ट की बात आएगी वी विल से दैट कि वो काम जो भी हमने शुरू किया है या जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है. सो व्हेन द एक्शन इज कंप्लीटेड, तो आप उसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे जो आपको कंप्लीशन की इंडिकेशन दे उस काम की. तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है. गो था वेंट, तो उसकी गोन. राइट, रोट और रिटर्न, रिटर्न यूज होगा, गोन यूज होगा. सो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. अब आप देखें ये भी सिमिलैरिटी है. अब इस परफेक्ट जो टेंस है इसके भी मेन वर्ब सिमिलर है.
प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो भी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगी, पास्ट परफेक्ट होगा तो भी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगी, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो भी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगी. कैन यू सी दैट हाउ सिमिलैरिटीज आर इन टेंसेस. अब आपके लिए याद रखने की क्या चीज है, द ओनली थिंग इज हेल्पिंग वर्ब. आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इनके याद करने. अब हेल्पिंग वर्ब की बेसिस पे ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर जाएंगे. हाउ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हैज एंड हैव आएगा. तो हैज विल बी यूज्ड विद ऑल सिंगुलर्स लाइक ही शी इट और नेम के साथ. हैव विल बी यूज्ड विद आई वी यू एंड दे. लेकिन मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट की आप बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है. हैड. आपको कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि आपने सिंगुलर्स और प्लूरल नाउन के साथ कौन कौन सा यूज करना है. नो no, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए. और यही फ्यूचर के लिए भी है. फ्यूचर में भी आप देखें ओनली विल हैव इज यूज्ड विद ऑल. आपको यहाँ भी डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. सो हाउ सिमिलर दीज आर. नेक्स्ट इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स. अब जब आप परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स की बात करते हैं सो वेरी फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको आप कहा करते थे स्कूल टाइम्स. सो अब ये टेंस जो है दो टेंसेस से मिलके बनता है. एक तो परफेक्ट से बनेगा और एक प्रोग्रेसिव से. अब परफेक्ट टेंस से ये लेता है हेल्पिंग वर्ब्स और प्रोग्रेसिव टेंस से ये लेता है मेन वर्ब की फॉर्म. समझ आई. इज इट समथिंग that you can understand or not. Clear, ma'am. Perfect progressive means perfect continuous. So perfect it means it is made up of basically two tenses. अब उसमें जो फर्स्ट है वो परफेक्ट है, सेकंड है प्रोग्रेसिव. तो आप परफेक्ट से मेन हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म लेते हैं और प्रोग्रेसिव से आप लेंगे मेन वर्ब की फॉर्म. सो प्रोग्रेसिव मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोग्रेसिव किसी भी टेंस के साथ होगा. आप इसका मतलब ये होगा कि आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होगी जिसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे. क्योंकि आपका टास्क जो है वो प्रोग्रेस में है. एट सम हाउ इट विल बी कंप्लीटेड और नॉट, इट डिपेंड्स. अगर तो वो कंप्लीटेड हो जाता है तो वो फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव बन जाता है. लेकिन अगर वो सिर्फ प्रोग्रेसिव में रहता है तो वो फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा. सो वी वर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ये हैज एंड हैव लेगा परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब. बीन इंडिकेट करता है इसके कंटिन्यूटी के होने के. एक काम जो है वो हो रहा है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है. सो इसमें हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं. फॉर इज यूज्ड व्हेन यू नो द एग्जैक्ट टाइम पीरियड. आपको पता है कि 8:30 पे जो है ये काम हुआ है. लेकिन अगर आप कहें कि इट हैपेंड सम डेज और इट इज हैपनिंग सिंस लॉन्ग, तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड का ही नहीं पता कि वो किस टाइम पीरियड में हुआ. या सिंस सो मेनी डेज, अब वो कितने दिन से हो रहा है. सिंस वीक्स, यू डोंट नो. तो सिंस 1960, अब आपको नहीं पता 1960 में वो कौन सा दिन था, कौन सा टाइम था. यू डोंट नो. व्हेन यू डोंट नो एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो आप सिंस यूज करते हैं. जब आप फॉर यूज करेंगे तो यू नो द एग्जैक्ट टाइम पीरियड. अच्छा, हैज एंड हैव बीन आर यूज्ड एज इन हेल्पिंग वर्ब्स और फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी इज यूज्ड एज इन मेन वर्ब. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रही हूँ. जब पास्ट प्रोग्रेसिव की बात आएगी तो आप परफेक्ट में देखें हैड था एज इन हेल्पिंग वर्ब. अब हैड बीन हो जाएगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव में और फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी मेन वर्ब की वो ही रहेगी. सिमिलरली फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में जो आपका परफेक्ट टेंस था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें विल हैव था हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे विल हैव बीन आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी वो सेम रहेगी. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सिमिलैरिटीज. प्रोग्रेसिव के जितने भी टेंसेज होंगे उनके मेन वर्ब सेम होंगे. परफेक्ट के जितने भी टेंसेज होंगे उनके मेन वर्ब की फॉर्म जो है वो सेम होगी. सिमिलरली परफेक्ट प्रोग्रेसिव के जितने भी टेंसेज होंगे उनके भी मेन वर्ब्स की फॉर्म सेम होगी. हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे सबके.
लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी जब परफेक्ट में यूज होते हैं तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के ही हम उठाते हैं, सिर्फ बीन उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो टेंस आपका बन जाता है. Till now, if there is any confusion, please ask. मैम जी, प्लीज. ये फ्यूचर में जो बिल आपने बताया कि इसमें कुछ बिल आएगा ना मैम, इसमें एक मिनट. हमने अ, हाँ. इसमें मैम ये हमें थोड़ा सा बाज होता है, ये ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें बात पे जोर दिया गया है ना मैम, कि हाँ ये होना चाहिए, तो इधर ये अरबाब, चल अरबाब, आई कांट हियर यू. आपकी आवाज बहुत ही डिस्टॉर्ट होके आ रही है. बिल्कुल ही बहुत मैम स्लो अभी है. आ रही है? हाँ, नाउ इट इज परफेक्ट. ओके मैम. जी, अब बताओ. मैम ये फ्यूचर टेंस में आपने बताया कि ये वेल अच्छा अच्छा सॉरी मैम मैम. जी, अरबाब, इट्स ओके. हाँ मैम इधर ना. अच्छा, ठीक है, वो कोई कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई है, दैट्स फाइन. So if you see here, I have given sorry, इसको मैं खत्म कर दूं annotation को. Let me to erase it. ठीक है. So here is present indefinite tense. So you will see simple present tense है which used to describe an action or event that is occurring in the present, जो present में हमेशा होता है. It is everyday task. So for example, I pray, she plays. If you see, there are affirmative sentences simple sentences को ही कहते हैं. So don't try to be confused. इसमें confuse नहीं आपने होना. Affirmative sentences simple sentences को ही कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है. ठीक है. Interrogative, interrogative question based जो tenses होते हैं, मतलब जिनके end पे question mark होता है. और negative जिनमें not use होता है. So these are the three types of basically sentences in a tense. Is it clear? एक टेंस में सेंटेंसेस की जो टाइप्स आती हैं वो तीन आती हैं. अफर्मेटिव जिनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, इंट्रोगेटिव जिनको क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस कहते हैं, नेगेटिव जिनमें नॉट यूज होता है. इज इट क्लियर? यस मैम. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जिसके कुछ एग्जांपल्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट. अच्छा, अब लाइबा, आपका माइक जो है, ओह सॉरी, आपका कैमरा ऑन है. इनको बनाने का एक तरीका है. इफ आई जस्ट टेल यू, आप एक मिनट में आपको एनोटेट करके दिखा दूं हाउ टू ड्रॉ इट. कोई भी एक टेंस होगा. फॉर एग्जांपल, हम सेंटेंस की अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसकी एक की मैं आपको बना देती हूँ. फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट. आप सब्जेक्ट के साथ यू विल यूज दिस इज दिस की इज फॉर सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो, अब सिंपल सेंटेंस में इफ यू जस्ट कैन रिकॉल, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. सो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म. एंड अकॉर्डिंगली अगर तो सिंगुलर्स हैं तो हम एस या यस यस. es लगा देंगे. ठीक है. अगर नहीं है तो वी विल नॉट यूज इट. एंड देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. ठीक है. इफ यू जस्ट मेक, अगर आप इस तरह की कोई की बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं रहेगा. यू विल सी दैट. शी प्लेज, सॉरी, सो यू सी दैट आपने उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी यू जस्ट फुलफिल्ड इट. अगर दे है तो दे प्ले इन द गार्डन. ठीक है. सो दिस इज फॉर द सिंपल सेंटेंस. If we will make its negative sentence,
तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो आप की बनाएंगे दैट इज लाइक, अब उसमें आप एडिशन कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सॉरी सॉरी, मेन वर्ब तो भूल ही गई। सो मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू विल जस्ट मेक इट, हाउ यू विल कन्वर्ट द फर्स्ट सेंटेंस इनटू she does not प्ले। अब देखें जब आपने हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करवाया ना, तो जो आपके मेन वर्ब की फॉर्म थी ना, वो फर्स्ट हो गई है। अब आपने उसके साथ वो जो आप लगाते थे ना एस या ई एस, वो आप रिमूव कर देते हैं, वो यूज नहीं होगी, ठीक है। सो शी डज नॉट प्ले इन द गार्डन। इफ द सेकेंड सेंटेंस इज oh sorry, they do not play garden, you will see here. So this is how you just make a negative sentence. When it comes about your interrogative sentence of present indefinite, so how the key will be, अब यहाँ जब की बनती है वो ये होती है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट फिर इसकी जगह पे आ जाता है, एंड देन यू यूज मेन वर्ब एंड इट्स फर्स्ट फॉर्म अगेन। यहाँ फिर से आपने इसकी वो जो एस या एस है वो नहीं लगाना, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, remember it, it is really important to put a question mark when you are going to make any interrogative sentence. Is that clear? So how you will replace now the first sentence, does she play in the garden, question mark, do they play in the garden, question mark. So that's how you will make it. आप जब ये कीज बनाते हैं, so they will keep यू ऑन द ट्रैक, ये आपको ट्रैक में रखती हैं कि हाँ आप अपने, सॉरी ये गार्डन के स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी, दैट्स हाउ इट इज। दिस विल कीप यू ऑन ट्रैक कि आप अपने सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस जो है उसको गलत ना बनाएं। दीज आर द कीज फॉर योर एनी फॉर योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। If we will move just towards the present continuous tense, so continuous में अब जो की चेंज होगी, सॉरी क्या हो रहा है यार, वेट अ मिनट, नोटेशन ऑन करके, so how we will remove it. So now when you are just going to make the key for your continuous tense, present continuous, so for simple sentences, for present continuous, subject, यहाँ तो helping verb है, helping verb, then main verb। अब यहाँ पे main verb की form भी आएगी, first form थी और उसके साथ क्या था, ing. exactly ing। So here you have completed it, then object and full stop। अब जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, so your key will be, pardon me for this mistake, so here subject, helping verb, then not, main verb, object and, oh crap, sorry, and for interrogative, oh, so again helping verb will replace your subject, then subject
एंड मेन वर्ब की सेम फॉर्म ही आएगी प्लीज फॉर्म इज गोइंग टू बी सेम फॉर इट लाइक फर्स्ट ing here main verb again first ing plus object and question mark. So this is the key for your simple negative and interrogative sentences of present continuous. So you can see here अगर आप ये side पे आपके sentences मैंने आपको slide पे दिए हुए हैं I am starting. So I is here subject, helping verb is am, main verb is start और उसके साथ ing लगाया तो it becomes starting. Depends on मतलब अगर हमने बहुत simple sentence बनाना है so you don't need to go for object, but if you wanted to go I am starting to do work तो that will be your object, वो आपका object की जगह पे आ जाएगा. If you are going to make its negative sentence, so your negative is I am not. So you see here, I is the subject, am is the helping verb, not is not starting main verb की first form के साथ. I'm not starting my work. So my work will be your object. If you can, if you just wanted to add it, you can. अब आप इसका negative sentence बनाएंगे तो am I starting my work. So you can see इट विल कीप यू ऑन ट्रैक. ये आपको ट्रैक पे रखता है अगर आप कीज बना लेते हैं अपने किसी भी इसको लेके. आई रियली प्रेफर है तो ये मतलब इफ आई से आई वुड से कि ये एक बहुत ही देखने में तो एक माइनर चीज लगती है कि दिस इज अ क्वाइट चाइल्डिश थिंग कि मैं आपको बिगनिंग में बताऊं कि आप कीज बना लें बट इट इज फॉर दोज हु थिंक लाइक टेंसेस आर डिफिकल्ट फॉर देम सो दे जस्ट नीड टू स्टार्ट विद दीज कीज. तो वो जब इनको बना के फिर इस पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो दे विल सी हाउ correctly they are going to make their sentences. अब आप प्रेजेंट परफेक्ट की देखें तो इसमें ऑलरेडी कीज आर गिवन. सब्जेक्ट प्लस ये देखें ये जहाँ हैव और हैज है तो यू विल कंसिडर इट helping verb. Past participles mean like you are going to here add your past third form of your main verb and at the end object is there. मैं आपको इसको indicate कर देती हूँ. इफ आई वुड से हियर तो इसके सिंपल सेंटेंस जो हैं वो ऐसे ही बनेंगे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की जो फॉर्म है दैट इज थर्ड. ओ सॉरी मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड है एंड देन ऑब्जेक्ट एट दिस. और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है सो फॉर नेगेटिव सेंटेंस यू विल गो फॉर सब्जेक्ट plus helping verb plus not sorry plus main verb form will remain same third object and full stop and then आपका interrogative sentence है so you here will be go for वही helping verb जो है वो replace कर देगा आपके subject को then subject then your main verb जिसकी आपने third form use करनी है then object and at that question mark. So here you will go. If you just will compare it with the sentences that are given to you in front of your slide, so you will see here how it is. It is just like that. I have tried sushi before. So I is the subject. Helping verb is have because I के साथ have आएगा subject helping verb. Tried third form है try की. So sushi before is your object. I have not tried sushi. So I have helping verb not and tried third form of main verb. Sushi before is your object. Have you tried? So have will be your helping verb, then subject, and then your main verb third form, and then your object. So you see how correctly and how accurately we can make a sentence with the help of your keys.
Is it clear? Yes, ma'am. So this is the same for your perfect continuous. perfect में सिर्फ एक चीज हेल्पिंग वर्ब में होती है, बीन को जो बीन की प्लेसमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आपने जब भी बीन को लगाना है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसकी जगह कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ आएगा। बीन विल ऑलवेज बी विद द नॉट, वो नॉट के साथ आएगा। आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब और बीन को जो है वो एक दूसरे से अलग, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। लेट मी टू शो यू हियर। नींद आना शुरू हो गया मुझे लगता है मुझे। सिंपल सेंटेंसेस, आई एम सॉरी मैंने बहुत लेम बात की है आप लोगों के सामने। नो मैम, इट्स फाइन, हमें भी आ रही है। नींद आ क्योंकि रही ये है पता सबको। नहीं है शायद टॉपिक ऐसा है, आई डोंट नो, बट आई प्रेफर, वैसे एंड मुझे मैम बहुत टाइम मजा भी आता है। अच्छा है, टाइम हाँ भी नहीं मैम, अच्छा टाइम, है, नहीं उसमें टाइम बेसिकली नहीं वेस्ट टाइम आती नहीं। है। ऐसा है, असल में ये टॉपिक ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने जब ये कैंपस में पढ़ाया था तो माय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रियली एंजॉयड, क्योंकि पढ़ाते हुए मुझे डर लग रहा था। आई वाज क्वाइट स्केयर्ड कि teaching tenses at the level of undergraduate, so maybe the students are going to be offended कि मैम के कर क्या रही हैं, क्यों पढ़ा रही हैं हमें, मतलब हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं हमें टेंसेस पढ़ाने बैठ गई हैं। बट व्हेन आई नहीं मैम। टॉट टू देम दे रियली एंजॉयड इट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके कॉन्सेप्ट्स जो थे वो अब आगे क्लियर हुए थे। दे डोंट हैव आइडिया, ऑल द टाइम टेंसेस तो सुनते ही थे हम लोग, बट दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इट इज एंड हाउ दे आर derived, how they formed, या उनको करने के कितने सिंपल तरीके हैं, हम उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे कैसे उनको क्लियर कर सकते हैं। सो दिस मेड देम, और उन्होंने पार्टिसिपेट भी बहुत किया था ऑन कैंपस, यू नो पार्टिसिपेशन इज मोर एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। अभी तो मैं बोल रही हूँ बट दे डिड इट, सो मुझे बहुत मजा आया व्हेन दे डिड इट एंड आई जस्ट टोल्ड देम द रूल्स। पता नहीं है शायद 3:30 इज द वेरी वर्स्ट जमाया, टाइम। हमें भी मैम जमाया आ रही हैं। नहीं अब थोड़ा एक्टिव रहो, साथ साथ पानी पियो, so you will यस be मैम। नहीं, fine। ये टेंसेस उन टेंसेस से ज्यादा इजी लग रहे हैं जो हम स्कूल में पढ़ते थे, और बहुत सारा, क्योंकि अब स्कूल एक्सप्लेन में हो जब, रहा है सब कुछ। हाँ स्कूल में जब मैंने भी पढ़ा था ना तो इट वॉज जस्ट लाइक द एक्सपीरियंस यू पीपल हैड लाइबा। मेरा बिल्कुल आप लोगों जैसा ही एक्सपीरियंस है, बिकॉज इवन आई वॉज इन अ प्राइवेट स्कूल, और बहुत बहुत फोकस्ड रहते थे वो लोग टेंसेस पे। लेकिन पता नहीं व्हाई टीचर्स डोंट ट्राई टू गिव अस द सिंपलेस्ट रूल्स एंड सिंपलेस्ट वे टू डू इट। हमें टेंसेस पता क्यों नहीं आते? व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन टीचर्स डेवलप एन आइडिया कि टेंसेस बहुत मुश्किल है ये नहीं आएंगे, when you just throw these kind of expression to your students कि ये बहुत मुश्किल है आप नहीं कर पाएंगे, they can't do it, वो नहीं कर पाएंगे। because being a teacher you are giving an image to them कि ये मुश्किल है, तो फिर जिन्होंने being a learner मेरे लिए तो वो बहुत ही फिर difficult हो जाएगा। so this is your job how to make it simpler and how to convey that idea in the simple way। अगर आप उनको बना के ही मुश्किल पेश करेंगे तो वो मुश्किल मुश्किल ही रहेगी, फिर वो उनके लिए आसानी तो कभी भी नहीं होगी। so let them to ease things how like you can make it simple and how you can get it in a very simple way। Anyways ये फिर जब मैंने when I started teaching to my students to O levels, तो there I realized कि मुझे इनको किस तरह आसानी से लेके चलना है। तो मैंने ये तब स्टार्ट किया था, देन आई स्टार्टेड दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कि मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊं ताकि वो उनका दिमाग में बैठे कि ये इस तरह वाली चीज है। इट इज नॉट लाइक दैट कि इसको नॉट और हैव बीन और हैज बीन यूज करो एंड दिस एंड दैट करो तो इन दैट्स इट। आप उनको कीज बता दें, दे कैन मेक इट, they will make it and definitely do it। आप उनको बता दें where they can see the similarities between tenses। अब present perfect continuous tense है और सबको पता है कि इसमें have has use होते हैं, ing फॉर्म यूज होती है, बट नेवर दे विल टेल यू कि भाई कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा है ना वहां से आप ing की फॉर्म उठाते हैं, वही मेन वर्ब की फॉर्म आप यहाँ यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस आपने बच्चे पढ़ा है ना तो वहां से आप हैव हैज उठा लेते हैं,
दैट इज एडेड इनटू इट और ये टेंस बन जाता है। सिर्फ आप एडिशन बीन की इसमें करते हैं और फॉर और सिंस अब तब यूज करते हैं अगर आपने टाइम पीरियड मेंशन करना हो। उसमें भी फॉर यूज हो जाता है जब आप श्योर हो, आपको एग्जैक्ट रेशियो टाइम की पता हो कि 2 दिन है, 4 दिन है, 8 बजे था, 10 बजे था, 2 साल थे, 2 महीने थे। लेकिन अगर आपको पता है कि वो महीने थे बस, वो साल थे बस, वो दिन था, सो यू विल यूज सिंस। और जहां आपको श्योरिटी नहीं है कि वो क्या टाइम था, तो this is how we can make it very simple one. बीन के एडिशन के लिए आई वांटेड टू मेक दिस की, अगर आप इन्हीं कीज को बाकी टेंसेस के साथ रिलेट करेंगे तो दिस विल बी सेम एक्सेप्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, उसकी की डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंसेस में आ जाता है ना। यहाँ तो इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट और पास्ट उसमें सिंपल में है ही नहीं, helping verb, negative or interrogative में है। So we were talking about present perfect continuous tense and its simple sentences. So subject is the very first thing. Then we will use helping verb, that is our have or has been. So here we will use have and has been. Then we will use here uh, first form, sorry, main verb and its first form of main verb, then your object, and that's it. Then if we are going to make negative sentence, so here अच्छा अब object में अगर आपका वो for है तो you know the exact time, ठीक है। and if it is slash since है, so you don't know exact time, ठीक है, उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता। Here you will make a negative sentence, so subject first, then a main sorry helping verb में आएगा आपका has, sorry has or have, ठीक है। इसके साथ आप लगाएंगे पहले not and then you will use been and then is your object and here you go। अब आप ये एक इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है कि आपको इसको बनाने के लिए आपको बीन की प्लेस का ख्याल रखना है। बीन जब भी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बीन की जगह मेन वर्ब से जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब से हट जाएगी। इट विल बी प्लेस्ड आफ्टर नॉट और आफ्टर सब्जेक्ट। देन अगर इंट्रोगेटिव है तो फिर ये आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। मैं आपको बता देती हूँ हाउ इट इज। सब्जेक्ट, oh sorry helping verb again means has slash have, ठीक है। then is your subject, then is your been, यहाँ अब been आएगा, ठीक है। and then your main verb, वही first form, ing, and there you will go for object and this is how you will look। I'm sorry here I have missed, मुझे लग रहा था यहाँ मैंने एक चीज मिस किया, वो हमारा मेन वर्ब था। यस मैम, मैं परेशान हो क्या हो गया। बताया करें मुझे ना अगर मैंने इसमें गलत किया है तो यू मैं शुड टेल। क्वेश्चन करने वाला था मैम। हाँ मैम ये Excuse me, सिंपल ही ma'am. थी आपने। और ये आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका Excuse सॉरी, me, ma'am. जी 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 अक्सा। मैम सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। No. Since is always used when you don't know the exact time period. मैम वी यूज सिंस फॉर लाइक मॉर्निंग सिंस हाँ अब इवनिंग। देखिए मॉर्निंग का कौन सा टाइम है, मॉर्निंग तो चलती है आपकी भाई डॉन से लेके आपकी 12 o'clock तक चलती है। सो अब उस मॉर्निंग में आई डोंट नो आपकी मॉर्निंग का कौन सा टाइम था, बट इफ यू जस्ट से 8:30, सो यू नो दैट एग्जैक्ट टाइम पीरियड कि ये आपका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है। मैं मैं गलत तो नहीं कर ये रही?
मैं आपको गलत तो नहीं बता रही? नो मैम, सही। मैम, मैम सेंस सेंस, एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। यस मैम, मैम यस मैम, सेंस एग्जैक्ट टाइम के लिए जाते एग्जैक्ट हैं। टाइम के लिए यूज होता क्या है मैम। बात है। और फार जो है उसमें जो मतलब शोर ना हो मैम। मुझे एक मिनट, इसको एक बार मुझे रिकॉल करने दें। लाइक सिंस 1960 यस मैम, इसी तरह लगे 99 के साथ इस तरह कोई and डेट एग्जिस्ट। since many years. नहीं। uh, मैम, 4 यूज होता है, 4 2 वीक्स, 2 वीक्स तो होते हैं मतलब परफेक्ट। exactly, you know the time period for bhai यस nahi मैम। nahi I'm right. For is always used when you know exact time period. When you don't know the exact, आप कह लें कि it means like so many days, so you don't know that how many days. मैम ये जी हम जो कहते हैं 12 बजे, तो वो तो पता नहीं होता मैम कि 12 बजे रात के 12 बजे, सुबह के 12 बजे। नहीं, देखिए ऐसे कैसे हो सकता है, if you are talking about मैम morning. नहीं मैम, ये सही कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैंने बुक ओपन की हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो हमें मालूम ना हो। सिंस, हाँ ना, तो आप देखिए ना एग्जैक्टली exactly, तो फिर वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है ना। अब आप कह रही हैं 20 मिनट, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि दीज आर एग्जैक्ट 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अगर आप उसको कह देंगी कि इट इज फ्रॉम द टाइम दैट इज मॉर्निंग, तो आपको अब मॉर्निंग का वो कितना टाइम था, यू डोंट नो दैट व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग में तो अब इतना लंबा टाइम पीरियड है, 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी हो सकते हैं, 30 मिनट भी हो सकते हैं। इफ यू मेंशन द एग्जैक्ट टाइम पीरियड कि वो कितना टाइम पीरियड था जिसमें आपने वो काम किया, so then it is then for is used. बट इफ यू थिंक दैट वो मॉर्निंग का कोई टाइम था, वो मंडे का कोई दिन था, या वो कोई सैटरडे था, या 1960 था, यू डोंट नो कि अब मंडे का वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें है, आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता। तो जहां आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, देयर यू यूज सिंस। अब समझ आई कि नहीं? मैम एक क्वेश्चन और। हाँ, मैम श्योर ये श्योर हम अरबा। जो ये 4 इयर्स जो 4 इयर्स के साथ फार लगा हुआ है ना मैम, लेकिन हमें तो अब ये नहीं पता मैम कि ये 4 इयर्स कौन से 4 इयर्स हैं, मतलब 2010 से देखिए 4 इयर्स हैं। देखिए दो, वो आप जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो 4 इयर्स हैं। अब जब आप लिखते हैं, अब हम एक सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, व्हेन यू विल जस्ट गो इनटू द डिटेल ऑफ इट। अगर आपने किसी उसको राइटिंग पैटर्न में लिखा है, फॉर एग्जांपल किसी स्टोरी में लिखा है, या किसी भी ऐसी चीज में यू हैव मेंशनड इट, सो देयर यू नो दैट व्हाट बेसिकली यू आर गोइंग टू मेंशन दैट टाइम। लाइबा डोंट गूगल इट। मैं आपको क्यों प्रेफर नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, मैं आपको पहली बार इस तरह की एक चीज के लिए रोक रही हूँ। क्योंकि नो मैम, गूगल इट्स पे फाइन। जो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही एम्बिगुअस है। आप जितना उसमें इंडल्ज होगी ना, वो उतना ही आपको ड्रैग करता जाएगा कि ये कहाँ है। मैं आपको इस सिंपल इसको याद रखने का तरीका बता देती हूँ। आप ये देख लो कि जहां भी आपको पूरा टाइम पीरियड बताए, मतलब 4 महीने, आपको पता है 4 महीने है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि वो 1960 से था, अब मुझे क्या पता 1960 से व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी एंड। लेकिन 4 महीने का मतलब है कि एक टाइम ड्यूरेशन है, आपके पास एक टाइम, एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको पता है कि भाई सिर्फ 4 महीने के बीच में, वो कोई भी हो जाए, दैट इज नॉट इफेक्टिव। व्हाट इफेक्ट्स इट इज कि अगर आप सिर्फ जाके ये कह दें कि इट इज फॉर ईयर्स, इट इज फॉर मंथ्स, या आप कह दें कि जी इट इज फॉर 12 मंथ्स,
तो वो आपको पता है कि ये 12 मंथ्स हैं, एग्जैक्ट टाइम पीरियड है। लेकिन अगर आप साल में कह दें कि इट इज सिंस 1980s, वी डोंट नो 1980s, हमें क्या पता 1980s का वो कौन सा टाइम पीरियड था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 4 months ऑफ दैट ईयर, सो यू नो दैट ये इस साल के वो 4 महीने होंगे, यू नो द एग्जैक्ट रेशियो काउंट करनी है। हाँ, चलें इसको और सिंपल कर लेते हैं, रेशियो काउंट कर लें। रेशियो मतलब कि हमें टाइम ड्यूरेशन पता हो, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 6 हैं, दो मतलब क्या मैं उसको कहूँ, 2 साल थे या 4 साल थे, 2 वीक थे या 4 वीक थे, 20 मिनट थे या 25 मिनट थे या आधा घंटा था। सो यू नो दैट एग्जैक्ट टाइम पीरियड, एग्जैक्ट रेशियो। समझ आया या नहीं? मैम आ मैम गई है। नीचे कंफ्यूज थोड़े हो से गए। चांस राइट मैम। मेरी बात सुने, मेरे पास एक मैं आपको एक लिंक शेयर कर देती हूँ, englishclub.com के नाम से है। लेट मी टू राइट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन्स। मैं आपकी स्क्रीन्स पे लिख देती हूँ, आप यहाँ से जाके इसको एक बार पढ़िएगा, यू विल गेट इट ये व्हाट आई यूट्यूब एम है टेलिंग या यू। गूगल है? गूगल पे आप जब लिखेंगे ना इंग्लिश club.com, so they will give you very clear idea about since and for। क्योंकि शायद मैं आपको समझा रही हूँ या तो शायद आपको समझ नहीं आ रही। when you will read it, आप इसको समझ के तो you can discuss with me in the next class, वो कोई मसला नहीं है, ओके मैम। you just can note it down। मैम मेरे ख्याल से वो पिछले लेक्चर की स्लाइड्स आपने नहीं वो की थी शेयर। लास्ट लेक्चर कौन सा था मुझे बता दे, मैं उसकी अभी इस लेक्चर के एंड पे कर मैम देती हूँ। कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन की। ओह आई एम सॉरी, मेरे मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया। अच्छा ठीक है, मैं अब भी कर देती हूँ, लेट हाँ। मी टू डू इट। ठीक है, अब आपके जितने भी बाकी टेंसेस हैं दे आर जस्ट अकॉर्डिंगली। सिंपल पास्ट में भी वही सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली कीज यूज होंगी। पास्ट कंटिन्यूअस में जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली कीज यूज होंगी। पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाली कीज यूज होंगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट वाली कीज यूज होंगे। एंड दिस इज सेम फॉर फ्यूचर। फ्यूचर टेंस की सिर्फ की डिफरेंट होगी, क्योंकि आप ये की देख लें आपके सामने ये सब्जेक्ट विल शैल उन्होंने लगा दिया, इट मींस हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का मतलब है बेयर फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई भी आईएनजी या एस या ईएस वो कुछ नहीं लगना। तो बेयर फॉर्म मींस सिंपल फॉर्म, वेरी सिंपल फॉर्म। Yes, my dear, I have uploaded the marks of all the assignments on portal. Shiri, if you can't see your marks on LMS, तो आप एक तो मुझे जब ये बात बताएंगी थ्रू ईमेल, उसके साथ ही जिस असाइनमेंट के गाइस, ये बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। if you just see that you can't find your any marks on your LMS, जहाँ बाकियों के जो है अपलोड हो गए तो आपके नहीं हुए, डोंट बी पैनिक अबाउट इट। मैं कभी भी रिजल्ट सबमिट नहीं करवाती until my class is not going to be satisfied about their marks on portal, are they uploaded or not। ये मेरा एक रूल है, मैं I never try to do it। तो इसमें आपने पैनिक नहीं होना। सिंपल इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट यू कैन डू। अगर आपका कोई मिसिंग है, सो यू कैन ईमेल मी दैट वेरी स्पेसिफिक क्विज, और आप उसको मुझे ईमेल में भेज दो। शायद वो आप जब आपने पोर्टल पे अपलोड किया हो तो वो आपका सॉरी एलएमएस पे अपलोड किया हो तो वो वहाँ ना हुआ हो। सो कीप इट विद यू, आप उसको मुझे ईमेल के थ्रू सेंड कर दो। आमिना, यस, अनम्यूट योर माइक माय डियर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मेरे असाइनमेंट 1 के मार्क्स नहीं लगे हुए, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने बाकी कुछ बच्चों के साथ आपको वो असाइनमेंट मेल की थी बाद में, मेल की सेंटेंसेस थी, वाली। जी मैम। ठीक है। अब वो मुझे ये बता दें कि वो कौन से कुछ बच्चे हैं जिनकी ईमेल भेजी, मुझे किसने है वो ईमेल, मुझे ये बता मैम दें। मैंने मैम फर्स्ट असाइनमेंट की भी मैंने भी मेल की थी आपको। आप लोगों ने, हाँ ये मसला है, जिन जिन के ईमेल्स के मसले हैं ना वो मसला करते हैं। पोर्टल के जिन जिन के होते हैं उनके मार्क्स अपलोड हो जाते हैं। ईमेल में क्योंकि आई रिसीव अ लॉट ऑफ ईमेल्स, सो दैट्स व्हाई समटाइम्स योर ईमेल्स आर जस्ट मिक्स्ड विद द अदर्स, तो वो इग्नोर हो जाती हैं।
आप में से जिनका भी ये इशू है ना कि उनके फर्स्ट असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हुए, तो अगर तो उनके अपने बैकअप में है वो मुझे भेज दो, अदरवाइज अपने नाम मुझे भेज दो, आई विल सर्च इट आउट इन माय ईमेल। मैम मैंने ना आपको एलएमएस पे भी मैंने अपलोड की थी मैम, लेकिन मैम ना पहली असाइनमेंट थी, मुझे अपलोड करनी नहीं है। मैंने ना ड्राइव का इट्स लिंक ओके। अब सेंड कर दिया था, तो हाँ फिर उमर, वो आपने कहा। आपके ड्राइव के लिंक को मैंने आज क्लिक किया है, सॉरी मैंने आपका नाम लिखा भी हुआ था कि मैं आपसे बात करूंगी इस लिंक के यस बारे में। मैम। उमर आई हैव ओपन दैट, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपके ड्राइव पे भी पासवर्ड है ना, मैंने जब उसको ओपन किया तो उसने मुझसे आगे से पासवर्ड मांगा, दैट इट इज यस मैम, डिफरेंट। मुझे पता नहीं था मैम। मैंने अब आपको एक काम तभी करो, आपको बताया था, आपको कहा था मैं ना, आपने कहा था ठीक मेल है, कर देना मुझे, तो मैंने हाँ आपको मुझे मेल कर दी ईमेल थी। कर दी थी ईमेल। यस मैम, कर दी थी। ठीक है, आई विल चेक इट, आई विल चेक मैम इट। अगर मैं देखता हूँ तो मैं दोबारा आपको फॉरवर्ड नहीं कर नहीं नहीं दूंगा वही। उमर, अगर आपने मुझे पहले ईमेल की हुई है ना तो दैट्स यस फाइन, मैम। वो मेरी ईमेल में होगी। अब जिनके असाइनमेंट 1 के मार्क्स नहीं लगे अपनी चेक कर लीजिएगा, मैंने आज असाइनमेंट 1 और 2 दोनों के मार्क्स अपलोड कर दिए। जिनके असाइनमेंट 1 और 2 के मार्क्स अपलोड नहीं हैं, दे नीड टू मेक अ लिस्ट। वो एक लिस्ट मुझे अपने जीआर को या सीआर को सेंड कर दें, वो मुझे ईमेल के थ्रू भेज दें, तो मैं उनके नाम पे डायरेक्टली लास्ट टाइम जैसे क्विज़ के लिए हुआ था, मैं उनके वो डाल के अपनी ईमेल में, तो वो फिर निकाल निकाल के चेक करके साथ में ही वो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, ये वेडनेसडे तक अब होगा, प्लीज अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नो प्रॉब्लम ओके मैम। ओके मैम। मैम। डू इट, मैं जरूर कर दूंगी। अच्छा, अब आपका क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे टास्क देना है फॉर योर थर्ड असाइनमेंट, और ये आपने मुझे नेक्स्ट क्लास तक सबमिट करवाना है, और उससे नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा। सो जस्ट हरियपली डू इट। अब आपने करना क्या है कि यू हैव टू रीड, मैं आपको बता दूं आपकी wait a minute, let me to go to check your आपने जो पढ़नी है अपनी शॉर्ट स्टोरी, यू हैव टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी। आपने लास्ट टाइम जो पढ़ी है दैट वाज अबाउट, अच्छा आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ आपको। चेक योर चैट बॉक्स हियर। आपके चैट बॉक्स में मैंने लिख दी है। आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड दिस वन, और इस स्टोरी में से आपको अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी स्टोरी से रिलेटेड। आपने कंट्रास्ट, मैंने आपको कंपैरिजन और कंट्रास्ट पे कोई दिया है टॉपिक? Yes, ma'am. The little black car. मैंने यस आपको मैम। लिटिल ब्लैक कार्ड दिया था। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। सो But व्हाट आपने टास्क आई असाइंड यू, मैंने आपको कोई टास्क तो नहीं इस पे असाइन किया? नहीं यस, टास्क थर्सडे नहीं को हो दिया गया था। था, मैम थर्सडे को आपको लेकिन क्विज क्विज दिया हुआ था था। आपने मेरे ख्याल से। असाइनमेंट ले लिया था। आपने फिर नहीं, असाइनमेंट ले ली थी। मैंने कौन सी असाइनमेंट ली है? मेरे पास पोर्टल में तो बच्चे आपकी कोई असाइनमेंट नहीं आई मैम थी। आपने मैम ग्रेडेड असाइनमेंट ली क्विज लिया मैम। मैम क्विज लिया रियल था। लाइफ और बिजनेस लाइफ वाली। मैम आपने क्विज दिया था, लिविंग इन ड्रीम एक्टिविटी वर्सेस थी, लिविंग इन एक्टिविटी थी मैम, रियलिटी। हाँ, that was what I एक्टिविटी। had given to you exactly। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, got it। अब आप लोगों ने वो एक्टिविटी की है? यस यस मैम, यस मैम, सबमिट हो गई थी उस जमा दिन। भी आपने एलएमएस पे एलएमएस में मैम। सबमिट करवाई है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं वो फोल्डर, मिड टर्म है, मिड टर्म के बाद तो कोई फोल्डर ही नहीं है। मैम आपने मैम खुद उस दिन सेपरेट फोल्डर क्रिएट किया था, मैंने तभी बनाया हमने किया है, था। हाँ मैंने गलत किया ना, मैंने फोल्डर बनाया है लेकिन उस फोल्डर को मैंने नाम नहीं दिया आपकी एक्टिविटी का। मैम आपसे कुछ पूछना भी था। जी श्योर। मैम क्विज के जो मार्क्स लगे थे वो एक में जो है आपने कहा था कि चीटिंग का केस था और दूसरे में 5 मार्क्स हैं,
तो उसमें तो हमारी मेरी और शाहरुख की जो है वो थीम सेम थी। शाहरुख की मैंने हाँ शाहरुख को मैंने आज भी पॉइंट आउट करना था। शाहरुख आई हैव फाउंड एवरीथिंग, ईदर इट इज योर असाइनमेंट और योर क्विज, एवरीथिंग इज कॉपीड फ्रॉम अदर। अभी भी मैंने आज इसकी 2 चेक की हैं और इसने दूसरों से किया है। शिजा मैं आपके मार्क्स करेक्ट कर दूंगी, आई गॉट इट कि वो करता ही ये है, ही ऑलवेज ट्राई टू डू। नो मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं, खुद ही लिखा है सारा। नहीं शाहरुख, आई जस्ट चेक्ड इट टुडे एज वेल एंड इट वाज जस्ट लाइक दैट। मेरा बिल्कुल ये पर्पस नहीं था कि मैं आपको क्लास के सामने ये बात करूं, मैं नहीं करना चाहती थी टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं अच्छा लगता टू पॉइंट आउट टू समवन अबाउट इट, लेकिन आई एम सॉरी, मतलब मुझे अब इसका कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा सीरियसली। तो मैंने आपको द वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था आई कैन कोऑपरेट विद यू, लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट योर दिस काइंड ऑफ केसेस आई एम सॉरी, आई कांट बेयर इट। मुझे ये चीजें नहीं पसंद बिल्कुल नहीं। इट इज मैम नॉट वो माय। खुद लिखा था हैंड रिटन अपनी वर्डिंग में नहीं सारा, मतलब कोई आपकी भी अपनी चीट वर्डिंग चेक। में नहीं है ना। आप अगर किसी से हेल्प लेते हैं तो इट डजंट मीन कि आप हेल्प के नाम पे जो है उस बंदे को चीट नहीं करो। मैम, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है अभी तक क्लास में। अभी तक तो हमारी ऑन कैंपस की क्लास नहीं हुई। आई डोंट नो मतलब आपका क्या सीन है, लेकिन आपके हमेशा आज भी मैंने आपके असाइनमेंट्स चेक की हैं एंड दे वर मैच्ड। वो फिर से मैचिंग निकल आई है आपकी। मैम क्विज की बात कर रही हैं, वो जो उसके मार्क्स नहीं असाइनमेंट लगाए थे आपने? जो मैंने आप अभी 2 असाइनमेंट्स आपके चेक करके उनके मार्क्स अपलोड किए। अब आप लोगों ने थर्ड भेज दिया, मैं इसके भी मार्क्स अपलोड कर दूंगी। सो बी केयरफुल क्लास अबाउट इट। ये नहीं अच्छा लगता, आई कांट डू इट। मैं खुद वैसे भी इसको नहीं कर पाऊंगी ना, मेरे लिए भी ये एक बहुत ही टेरेबल किस्म की चीज है कि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स इस तरह करें। मैम दोनों क्विज के इश्यूज थे, एक में 5 मार्क्स हैं आई आउट विल ऑफ डू 10 इट, और एक में 0 है। आई विल डू इट। शिजा आपका सेकंड क्विज जो है वो शायद मेरे पास आया ही ना हो, इसलिए उसके 0 हैं। मैम मैं आपको मेल कर दूं अगर हाँ नहीं आएगा? मुझे मेल कर दो, मुझे मेल कर ओके दो। मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम आया फिर। Rest. Okay, now I need to मैम मेरे भी balance. फर्स्ट असाइनमेंट के मार्क्स अपलोडेड नहीं है। जिनके अपलोड नहीं है ना प्लीज वो मुझे अपनी असाइनमेंट्स ईमेल के थ्रू भेज दें। मैम ओके आफ्टर मैम। दिस क्लास हम मैनेज कर लेते हैं, मैं After और this तहरीम। class, yeah, please. Thank you, Zain and Tahreem. Just manage it, and I will do it till ओके Wednesday. मैम मैम। आपने आज कोई नंबर्स अपलोड किए हैं दोबारा? आज मैंने आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दी ना, आपके पोर्टल पे 2 असाइनमेंट्स और 2 क्विजेस के जो भी मार्क्स थे। क्विजेस के तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तो असाइनमेंट्स के आपके रहते थे वो मैंने आज अपलोड कर दिए सभी। यस मैम। मैम असाइनमेंट 2 के आ रहे हैं, असाइनमेंट 1 के नहीं आ रहे मार्क्स पोर्टल पे। नहीं यार मैंने असाइनमेंट 1 के आ रहे वन हैं। के भी मैंने हाँ आई हैव मेरे आ अपलोडेड। रहे हैं रिपोर्ट मैम। आ रहे हैं। चलें अपनी अपना अटेंडेंस मार्क करवा लें फिर मैम हम। ये जो कंट्रास्ट और लिविंग रियलिटी वाला था हम्म मैम, हम्म। मैम वो आपने ऊपर लिखा हुआ था असाइनमेंट 3, तो मैम वो असाइनमेंट असाइनमेंट थी वो? वो असाइनमेंट थी आपकी बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्लास में यस आपका मैम। क्विज लूंगी, ठीक है? तो ओके आपने मैम। ये जो मैंने आपको ये स्टोरी दी है ना, शॉर्ट स्टोरी, आप लोगों ने ये यस पढ़ मैम। के आनी है। ओके मैम मैम। आई डोंट गेट इट मैम, मैम किस व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस? हमारा क्विज होगा? रिलेटेड टू योर या सॉरी मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं। दिस विल बी रिलेटेड टू योर सॉरी या टेंसेस या ओके मैम। आपके टेंसेस से रिलेटेड, ठीक है? ठीक है। प्रेजेंट एक्सक्यूज मी इंडेफिनिट। मैम, You just need to focus. असाइनमेंट 1 कौन सी थी? You just need to focus सुभान अल्लाह। first 4 tenses of present. Present, ओके ओके मैम। ठीक है? और असाइनमेंट 1 कौन सी थी? वो टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। कंपाउंड वाले थे कंपाउंड मैम। सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाई यस थी, मैम। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। कुछ लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। भाई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का डिफरेंस है। कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, लेकिन मेजॉरिटी ने उसको गलत किया हुआ था। खैर अपने मार्क्स एक्सक्यूज आपको मी पता मैम। चल ही जाएगा। मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं, देन आई विल बी बैक टू यू, ठीक है? मुझे सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने दे। अलीना, अमीर हमजा, एक्सक्यूज मी मैम। आमना, Present. आमना अमीन। Present.
गाइस अपना माइक म्यूट कर दें जिनके अटेंडेंस अभी नहीं हुई या हो चुकी है, जिनकी हो रही है दे जस्ट नीड टू अनम्यूट देयर माइक। अक्सा, Present. अरबाब, Yes, ma'am, present. अरसलान, Present, ma'am. आयशा असलम, Present, ma'am. बिलाल। बिलाल को बताएं व्हाई ही इज डूइंग दिस, मतलब वो क्यों अपना नुकसान खुद ही कर रहा है। उसकी कोई असाइनमेंट, कोई क्विजेस मेरे पास नहीं है, हार्डली शायद एक दो होंगे। प्लीज कन्वे माय मैसेज टू हिम। फजर, Present, ma'am. फिजा, हमाद। Present, ma'am. फिजा आपका माइक किधर है भाई? हसन रजा। Excuse me, ma'am. मैं present हूँ. तो फिजा, आई एम कॉलिंग योर नेम बट यू वर नॉट देयर। Yes, ma'am. वो मेरा mic नहीं open हो रहा था. कशफ, Present, ma'am. फजरदार। Present. Kashyap बच्चे, you are doing so well. मतलब I just love to read your assignments and quizzes. They are perfectly good. Thank you so much, ma'am. लाइबा सईद, Present. लाइबा अमजद। I'm sorry, शायद और भी बच्चे होंगे। मुझे कश्यप का इसलिए याद है कि मैंने अभी उसकी चेक किया, खत्म किया है। So there are so many students who are doing well. शिजा, as I know, शिजा की भी बहुत अच्छी assignments होती हैं। Thank you, ma'am. लाइबा अमजद, Present, ma'am. Present. लाइबा ताहिर, Present, ma'am. महानूर, Present, ma'am. मलाइका, Present. मरियम खान, Present. मरियम नासिर। Present, ma'am. मरियम बच्चे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। वो चाहे आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो, किसी से हेल्प ले लो, व्हाटएवर यू वांटेड टू डू इट, बट जस्ट डू इट। इसको थोड़ा सा फोकस करो। Okay, ma'am. मिराल, Present. हमाद, मैम मोहम्मद हमाद अली रफी। Present, ने ma'am. मुझे मैसेज किया था, ओके ओके। उमर नेट इशू कह फारूक, रहा मुझे। Present, ma'am. मोहम्मद बिन अब्बास, Yes, ma'am, present. नजमुल हसन, Yes, ma'am. मोहम्मद रमजान। Present, ma'am. रमजान, आप भी चीज़ों को समझो। व्हाट क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, जो आपको एक लेक्चर दिया गया है, यू नीड टू रीड इट अगेन एंड यू नीड टू लिसन द रिकॉर्डिंग। उसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करो, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। एंड क्लास आपका कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ, बट व्हेन इट कम्स अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, ट्रस्ट मी, आपसे आपका नॉलेज कोई नहीं लेगा। द वे यू परफॉर्म योर टास्क, नोबडी कैन डू इट। अगर आपसे कोई हेल्प लेता है तो जस्ट ट्राई टू हेल्प देम एंड एक दूसरे को कर दिया करें हेल्प। आई फील लाइक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी, नहीं पड़ता। मोहम्मद As we जैन, are a ma'am, same batch. या यू नो, आप लाइक माशाल्लाह आपने 4 years you are going to be together, so इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मोहम्मद जैन, नेहा, Present, ma'am. रिदा, Present, ma'am. सदाम, प्रेजेंट मैम। साहिल, साहिल, सानिया, Present, ma'am. सैरिश, शाहरुख, Present, ma'am. शजर अब्बास, शजर अब्बास, शीरी, Present. शिजा, सुमैया, Present, ma'am. Present, ma'am. तहरीम, ओके, तहजीबा, Present, ma'am. युसरा। Present, ma'am. युसरा बच्चे, आपके असाइनमेंट्स मिसिंग हैं। मैंने आज चेक की हैं तो आपकी मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिली। I don't know where they are or you have not attempted. I don't know. So just do it if you have not done. मैम Excuse me, वो जब ma'am. स्टार्टिंग में मेरी क्लास नहीं हुई थी तब की शायद मिसिंग है।
हाँ वो आप देख लो एंड आप एक भी सबमिट करवा दोगे तो मैंने बेस्ट 3 अपलोड करनी है, तो अभी 2 तो मैं आपकी अब ले रही हूँ, तो एक जो है आपको करनी पड़ेगी, या फिर आपकी 2 ओके भी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मार्क्स लगाऊंगी। हाँ मैम जी आप शाहरुख। मैम बेस्ट मैं आपको अपलोड दोबारा से कीजिए। मेल कर दूं, चेक कर लें प्लीज एक दफा वो। शाहरुख आप मुझे दोबारा से भी ईमेल करेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, मैंने बच्चे चेक किया है, आई हैव चेक्ड इट राइट नाउ, आई जस्ट चेक्ड इट, आई डोंट नो लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट इट, I'm मैम but मैंने still किसी you से people मतलब have time. हेल्प वगैरह नहीं। Shahrukh, I'm going to upload 3 best, so still you have time. जो भी अब आपका final की हो रही हैं assignments now and quizzes, try to keep focus on it and do it very well. अभी जो मैं आपका quiz लूंगी उसको भी, इससे next भी, whatever the things are, तो उसको till final आप उसको कर लो। और class मैंने आपको topics assign कर दिए, मैं मुझे लगता है मैंने आपसे पहले भी पूछा है, and I just forget it. मैंने आपको यस मैम आपकी करती हैं आपको। प्रेजेंटेशन, हाँ उसको प्लीज प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज बिफोर लास्ट 2 वीक्स में आपकी प्रेजेंटेशन जो है मैं स्टार्ट कर दूंगी, आई एम जस्ट रनिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आउटलाइन। तो आपका एक टॉपिक रह गया क्रिटिकल एनालिसिस, इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स हैं दिस एंड दैट का यूज, सो दीज थिंग्स यू कैन डू इट फ्रॉम योर ग्रामर बुक, ऑक्सफोर्ड ग्रामर, आप उसमें से उसकी प्रैक्टिस कर लें। मतलब मेरा नहीं ख्याल में आपको दिस एंड दैट का यूज पढ़ाऊं, सो इट विल बी फाइन। टेंसेस आर बिग at a bigger level than this use of this and that, so just do it. If there will be any difficulty you can contact to me and you can consult to me, that's not a problem. And एक्सक्यूज मी मैम, yeah, साहिल यहीं पर है पर उसके माइक का कोई इशू आ रहा है, वो क्लास में ही है। तो आपने उसको कहना था कि मैम एटलीस्ट मुझे चैट बॉक्स में लिख दे। अ, ठहरे मैं जी मैम, मेरा इंटरनेट का इशू है। ठीक है मैं लगाती हूँ साहिल, आपकी अटेंडेंस लगाती हूँ, क्योंकि मैं अभी देख रही थी आपकी अटेंडेंस तो पूरी थी जब मैंने क्लास स्टार्ट की है, लेकिन फिर बीच में लोग जो हैं वो मुझे मिसिंग लग गए हैं। ठीक है, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस। So, I'm sure you people will enjoy your days as lockdown. There is an ease in the lockdown, and people are happy that now they can dine out somewhere मैम तो and they तुम्हारे can फाइनल hang out. फाइनल ऑन कैंपस होंगे या ऑनलाइन फाइनल? Online, I think. अभी तक एक्सक्यूज मी मैम। ऑन कैंपस का कोई सीन नहीं है। हाँ जी, बताएं बताएं बताएं। मैम ये जो आपने सेकंड असाइनमेंट्स के मार्क्स लगाए हैं, ये कौन सी वाली असाइनमेंट थी, ये रेस्टोरेंट वाली? रेस्टोरेंट वाली कोई असाइनमेंट नहीं थी, आपकी जो सेकंड असाइनमेंट थी वो थे आपके रिलेटिव क्लॉज और डिफाइनिंग नॉन क्लास रिलेटिव। वाली? हाँ यस बिल्कुल। मैम ठीक। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम मैंने अभी पढ़ा है वो फॉर और सिंस के बारे में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। मैम इधर लिखा हुआ है वो यूज फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम 3 ओवर 2 months एंड 1 डिकेड। वो यूज सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन पास्ट टाइम 9 o'clock 1st January Monday। मैंने आपकी बात ही सुनी क्योंकि मैं आपकी स्लाइड्स अपलोड करने पे फोकस कर रही हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं आपकी तरफ आती हूँ। लेट मी डू ओके मैम। अपलोड। अच्छा आपका जो प्रीवियस था वो किस बारे में था, कॉज एंड इफेक्ट पे था? नहीं, कंट्रास्ट वाला था मैम। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे राइटिंग यस था मैम। आपका। ठीक है, यस हियर आई हैव अपलोडेड इट, वो अपलोड हो गया आपका। नाउ I have taught you today about your tenses. So let me do it. Tenses. Yeah. Done. चलिए आप बताएं मुझे। मैंने मैम वो इंग्लिश क्लब में पढ़ा है अभी, वो कह रहे हैं कि वो यूज फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम 3 hours 2 months 1 decade and we use since to talk about a point in past time 9 o'clock 1st January Monday। तो मैम एग्जैक्ट टाइम फॉर के लिए उन्होंने कहा है कि we use it for Monday और नहीं मैम 3 hours 2 months and so on। हाँ तो देखो ना अब आपको पता है कि ये एग्जैक्ट टाइम है,
जहां आपको टाइम पीरियड ही नहीं पता कि वो क्या किस टाइम पे वो काम होगा। मतलब आप एक एस्टिमेशन नहीं लगा सकते उस टाइम का। यू जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट के ये जो है एक इस दिन में होगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि वो उस दिन में भी मतलब एक साल में है तो एक साल के इतना टाइम है। अगर आप एक साल में आप किस टाइम पे किस महीने में अगर आप उसको एक साल के किसी एग्जैक्ट टाइम में बताते हैं, सो सो देयर इज एन एग्जैक्ट टाइम पीरियड। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड का नहीं पता, यू ऑलवेज यूज सिंस। ओके मुझे आई एम नॉट श्योर कि अभी भी आपको इसकी समझ आई है या नहीं। आप क्लास के बाद इसकी एक थॉरो स्टडी करो। आई द लिंक आई हैव शेयर्ड विद यू, उसके थ्रू भी करो, सो यू विल गेट इट। एक्सक्यूज ओके मी मैम, मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज जी मी मैम। जी मैम बताएं। असाइनमेंट 2 की आप मिस्टेक्स बता सकती हैं, क्योंकि असाइनमेंट 1 में मेरे फुल और असाइनमेंट 2 में मेरे 5 मार्क्स है, तो मैं खुद परेशान हूँ। हाँ, ये जो आप परेशान है ना, ये पूछें आप आपके मैच किससे हुआ है। ये और आपकी मैम चीटिंग मेरा की वजह से वाइवा हुआ है। के मार्क्स कम है मैम तो फिर मैम वहाँ पे भी आप मुझे परेशान हो रही हूँ। आप मुझे वाइवा बता का सकती हैं। आई हैव नो सोल्यूशन, क्योंकि आपको भी पता है कि वाइवा वाज अ थिंग दैट आई जस्ट डिड इट एट द वेरी मोमेंट। वाइवा में मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। यू शुड बी तो फिर वेरी मैम कॉन्शियस। मैं हम लोग मार्क्स मैनेज खुद करें अब नेक्स्ट क्विज़ के थ्रू। तो बच्चे आपके मार्क्स मैंने मैनेज करने हैं? नहीं मैम, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि यही ऑप्शन कर लें अब रीटेक तो हो नहीं देखें, सकता। वो वाइवा का रीटेक, देखें पेपर और वाइवा का रीटेक तो नहीं ना होता। आप खुद सोचें, इज इट पॉसिबल कि आपके पेपर या वाइवा का रीटेक हो? ऐसा तो नहीं ना होता। अब पेपर आपका खराब हो जाए या आपका क्विज भी, इवन यूएमटी तो क्विज भी अलाउ नहीं करती कि आप रीटेक लें क्विज का, चाहे एक बच्चे ने वो मिस कर और दिया मैम है। अगर मिस हो जाए तो भी हाँ, यूएमटी रीटेक नहीं अलाउ होता। नहीं करती। यूएमटी नेवर अलाउज अस मैम टू आज सुबह ना पाक स्टडीज की क्लास में सर ने कहा था जो जिनके मिस हो गए वो कर दें रीटेक। आपकी पाक स्टडी पढ़ा कौन रहा है आपको? सर शहबाज असगर। वो कर सकते होंगे शहबाज हो खरे सकता नाम है, है उनका। मैम हो सकता है मैम मैम। आप मुझे क्योंकि बता सकती हैं यूएमटी का किसके साथ रूल मैच हुआ है, है? मैं आपको बता दूं, यूएमटी का रूल है, वो अलाउ नहीं करते। खिजर मुझे अब नहीं पता कि आपका किसके साथ मैच हुआ। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि जब मैं रैंडमली पढ़ रही थी तो आपका वो जब जैसे ही मैच हुआ आई जस्ट मैंने गलती की, मुझे लिख लेना चाहिए था। जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिखा था चलो ना, मुझे ठीक है। लिखना मैम चाहिए। जिनके अपलोड नहीं हुए वो चीटिंग जिनके वाला केस। अपलोड नहीं हुए हुए उनका मुझे मिले ही नहीं है। मैम हाँ जी। ये मेरे मैम असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 और क्विज 1 के मार्क्स नहीं लगे मैम। अभी पता नहीं चल रहा कि ये क्विज मैम 1 कौन। लेट थी हमारी। हम थोड़े से लेट आए थे मैम। अभी अच्छा, इसमें आप लोग लेट थे। यस मैम जी अगर लेट आए आपके थे तो एक हमारी एक है ना, मेरी बात सुने। असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो तो मैं आपके एवरेज लगा दूंगी। जब आपका सेमेस्टर एंड होगा ना, फाइनल से पहले, आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपकी असाइनमेंट्स और क्विजेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपकी जो एक असाइनमेंट है ना, उसके मार्क्स में आपकी बाकी 3 असाइनमेंट की बेसिस पे एवरेज लगा दूंगी, उसका इशू नहीं है। बाकी आपकी क्विज की बात रहेगी। क्विज आपका रीटेक नहीं होता, तो अगर रीटेक नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं एवरेज लगाऊं या फिर मैंने वैसे ही 3 क्विजेस के मार्क्स अपलोड करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 3 के ही जाएंगे, 3 असाइनमेंट्स और 3 क्विजेस के जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक एक असाइनमेंट और क्विज एक्स्ट्रा ले रही हूँ। समझ आई? ओके मैम। मैंने ऑलरेडी आपको सेमेस्टर के शुरू में बता दिया था, मैं आप लोगों से एक एक क्विज और एक एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा लूंगी, ताकि अगर किसी का कोई मिसिंग है तो वो रिप्लेस हो जाए उससे। मैम टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 4 तीन क्विजेज होते अपलोड हैं। होंगे 2 मैम। आपके मिड से पहले, 2 क्विजेज मिड से पहले हुए आपके, और 2 असाइनमेंट्स मिड से पहले हुई। अब 2 असाइनमेंट्स और 2 क्विजेज आपके मिड के बाद होंगे। एक असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करवा दी उस दिन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाली। एक आपने और करवानी है, एक क्विज मैं नेक्स्ट वीक में लूंगी, और एक आपका लाइक लास्ट से कुछ टाइम पहले ले लूंगी। ठीक है? टोटल 5 सीरीज होंगे मैम। 4 यार, मैं अभी भी बता रही हूँ 4, अभी बता रही हूँ, फिर से वही बात। इन 4 में से आपने 3 बेस्ट 3 3 अपलोड अपलोड करें। करने। हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। अब
कोई मसला तो नहीं है? नो नो No, मैम, मैं ma'am. इसीलिए करती हूँ कि जिनका कोई थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट हो वो उनका कवर हो जाए, ताकि किसी को फिर मसला ना हो, क्योंकि हो जाता है ना समटाइम्स इमरजेंसी भी हो जाती है, यू कांट अटेम्प्ट क्विज और असाइनमेंट, यस नहीं मैम, कर पाते। हमारा अपलोड किया था मैम हमने, लेकिन 2 दिन बाद किया था जाके वो फर्स्ट इशू नहीं असाइनमेंट। होता शाहरुख, अगर आपने 2 दिन बाद भी अपलोड किया तो वो तब भी मुझे मिलेगी। अपलोड हुई है लेकिन मार्क्स नहीं लगे हुए मैम। फिर पता नहीं वो क्या इशू, अगर तो आपके पास वो है तो वो मुझे ईमेल कर दो। I think I need to leave now. अब जा सकती हूँ कि नहीं? Lot of questions. I think I Yes, have ma'am. Thank you answered for all your the questions. cooperation, ma'am. No Thank you for your problem. cooperation, ma'am. No problem. चलें. See you in the next class. Be prepared Allah for your Hafiz, ma'am. quiz. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।